Hello student, today we are going to learn next problem number 6 and from your textbook page number 150 problem number 10. In this problem exactly we learn calculation of capital and as well as whatever amount of capital account that can be transferred to current account. Okay. And next method we learn if goodwill amount given in old balance sheet, then what we do exact that can be we learn in this problem. Be focused on calculation of capital adjustment. I'll read problem here. Kabir and Reshma are partners in the firm sharing profit or losses in the ratio 4:1. See here, Reshma's and Kabir's are old partner. Their profit sharing ratio is what? 4:1. Means 4 ratio for 4 for Kabir, number of shares for 4 for Kabir and 1 share for Reshma. Total number of shares is what? 4:1. 4 plus 1 is 5. Old ratio is what? 4:1. Their balance sheet as on 31st March 2019 is as follow. Here they given old balance sheet of old partners. Assets and as well as liabilities. Okay. See. First balance they given Kabir's and Reshma's capital account that can be posted to partners capital account credit side. Where we posted? Partners capital account credit side by balance brought down 1,05,000 and 75,000. Understood everybody? Next they given general reserve amount. And always remember general reserve fund we distributed to all partners in their old ratio because is a part of all profit or loss. Okay, that's why we distributed to all partners in their old ratio. So general reserve is transferred to partners capital account credit side by general reserve in old ratio. Old ratio is what? 4:1. So distributed that 30,000 into 4:1. So amount is here for Kabir 24,000 and Reshma 6,000. Okay. After that we see here next balance. Profit or loss account. Same thing here. Again we distributed that profit or loss account balance to all partners in their old ratio. And 4:1. So where we posted that one balance transfer to partners capital account credit side. Profit or loss account balance transfer to partners capital account credit side in their old ratio. Next one, creditors for goods. Creditors for goods matlab means what here is a creditors amount. So directly we posted that one amount to new balance sheet liability side. Where we posted new balance sheet liability side. Next, creditors for expenses. Same is it again here is a creditor for expenses or creditor for goods. Both one are our creditors, that's why both one balance is our liability. That's why we posted that one amount to new balance sheet liability side. Understood everybody? Either it's a good or expenses, both one is our creditors. That's why means is a payable amount. That's why we transfer to liability side. Understood everybody? Okay. See, different thing from that one balance sheet is what? Creditors to goods and creditors for expenses. And as well as general reserve and profit or loss account balance. That can be different from other problems. Okay. Next, see, asset side. Asset side we will see here first one goodwill amount. What we see here? Goodwill amount. आज तक जितने भी प्रॉब्लम थे उस प्रॉब्लम में हमें गुडविल नहीं दिखा था. ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिया. अगर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल की अमाउंट दी जाती है और एडजस्टमेंट में भी बताया जाता है
तो कंपल्सरी याद रखो, जो भी एडजस्टमेंट में टोटल गुडविल की अमाउंट बताई होगी उसे कंपेयर करना है ओल्ड गुडविल के अमाउंट के साथ। उसमें से जो भी डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस अमाउंट ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर। सबको याद रहेगा, जो ओल्ड बैलेंस शीट में जो गुडविल की अमाउंट दी है एंड एडजस्टमेंट में जो भी गुडविल की अमाउंट दी है उसमें से क्या करो, डिफरेंस फाइंड आउट करो, और जो भी डिफरेंस निकलेगा दैट डिफरेंस इज न्यू पार्टनर्स गुडविल अमाउंट। ओके, देन सी नेक्स्ट वन, sundry debtors rupees 30,000 and as well as they given RDD. Again be focused on RDD adjustment. Land and building rupees 1 lakh that can be transferred to new balance sheet asset side, where we posted new balance sheet asset side. Bank, here we create a new adjusted bank account. So next that one balance transfer to bank account debit side. Bank account debit side 83,000. Okay, next I'll read all adjustments. First adjustment, on 1st April 2019 Suvarna admitted in the partnership on the following terms. On 1st April they admitted to Suvarna as a partner with the following condition. Okay, so see, first condition is what, Suvarna to bring for 20% shares in future profit for rupees 45,000. that means that sentence का मतलब है यहाँ पे सुवर्णा ने कैपिटल लाया है 20th शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अभी 20th शेयर एंड फ्यूचर प्रॉफिट मतलब निकालना है 100 के 20%। सो 100 के 20% मतलब कहता है 1/5। सो यहाँ पे फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सुवर्णा इज व्हाट, 1/5। क्या है, 1/5। कैलकुलेट करके देखो, 100 के 20% मतलब क्या आ रहा है, 1/5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1/5। 20 निकालना है, तो दैट्स वाई हर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/5 and she will bought capital amount of rupees 45,000. Okay, so when new partner bought capital, then where we posted partners capital account credit side by bank. Why we recorded here bank? Because in old balance sheet we seen bank account of cash or bank we transfer to whatever amount we transfer to our bank account. That's why first effect we recorded when new partner bring capital, partners capital account credit side by bank under column Suvarna. Second effect, bank column debit side, bank column debit side to Suvarna's capital account 45,000. Understood both one effect? First one effect we recorded partners capital account credit side, and second effect we recorded bank account debit side to Suvarna's capital account. See, next adjustment. Okay, what is the general entry when new partner bring capital? Then general entry is cash or bank account debit to Suvarna's capital account 45,000. Understood everybody? When new partner bought capital, then entry is bank account debit to Suvarna's capital account 45,000. Okay, see, next one adjustment, goodwill of firm is valued at rupees 75,000. See here total goodwill amount is what, 75,000. How many? 75,000. Total firm's goodwill amount after admitting Suvarna is what, 75,000. अच्छे से समझ के लो, यहाँ पे आफ्टर एडमिटिंग सुवर्णा टोटल गुडविल अमाउंट रुपीज 75,000 and last one amount is what, 6,000. What is the difference? Yes, 75,000 minus 66,000 difference is what, 9,000. Difference is what, 9,000. So that difference means what, is Suvarna's capital, Suvarna's goodwill.
That difference is what? Suvarna's goodwill. So difference is what? 9,000. So 9,000 she will bring. So what we do? First effect, when she bring goodwill, then we recorded cash account debit side to goodwill and goodwill account credit side by bank or cash. Rupees 9,000. Second effect, when new partner bring goodwill, then second effect, that amount distributed to all partners in their sacrifice ratio. That amount distributed to all partners in their sacrifice ratio. So distribution means retain that goodwill in a business. So amount is what? 9,000. So 9,000 distributed to all partners in their ratio. So what we recorded? Where we recorded? Partners capital account credit side by goodwill in their ratio 7,200 for Kabir and 1,800 for Reshma. Okay, see the posting and second effect, goodwill account debit side. Second effect, we recorded goodwill account debit side to Kabir's capital to Reshma's capital. 7,200 for Kabir and 1,800 for Reshma. Understood? What is the journal entry? First one, she bring goodwill rupees 9,000. That's why entry cash or account debit, cash or bank account debit to goodwill account 9,000. Second, retain that goodwill amount retained in a business. Then entry is goodwill account debit to Kabir's capital account to Reshma's capital account. Okay, understood everybody? Okay, बाद में दिखाती हूँ मैं आपको solution, but before that one, listen carefully what exactly we do for that particular adjustments. Next adjustment, RDD is no longer required. इसका मतलब है यहाँ पे हमें RDD मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हमारे कोई भी डेब्ट्स नहीं है. जब हमने एडमिट किया था सुवर्णा को तब कोई भी डेब्ट्स नहीं है. फिर वो पहले से हमने प्रोविज़न की थी 3,000 की, उसका क्या हो गया? वो हमारे क्या हो गया? रिजर्व हो गया, मतलब बच गए. ओके, तो इज अ वन टाइप ऑफ गेन. सो ओके, तो ये क्या हो गया? हमारे लिए गेन हो गया. तो गेन रिकॉर्ड किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. देखो आरडी अगर हमें देना पड़, मतलब आरडी जो भी है उसने हमने प्रोविज़न की और सच में उस पर्टिकुलर कस्टमर ने या डेटर्स ने पैसे नहीं दिए, तो इज़ अ वन टाइप ऑफ लॉस. सो दैट्स वाई वी रिकॉर्डेड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. बट हियर व्हाट हैपन, हमारा कोई भी आरडी या कोई भी डेब्ट्स नहीं है. सो वॉट एवर अमाउंट वी रिजर्व, दैट अमाउंट इज अवर गेन. दैट्स वाई वी रिकॉर्डेड दैट 3,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड by RDD rupees 3,000. So what is the journal entry? When no longer RDD is required, then journal entry is RDD account debit to revaluation account or profit or loss adjustment account. Profit or loss adjustment account is another name of revaluation account. Understood everybody? Confirm? देखो फिर से बता रही हूँ एक बार, क्योंकि ये एडजस्टमेंट जरूरी है. यहाँ पे बताया गया है आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर, मतलब हमें आरडीडी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी या करना ही नहीं है. बट हमने देखा ओल्ड बैलेंस शीट में हमें पहले से क्या दिख रहा है? आरडीडी का बैलेंस दिख रहा है. तो आरडीडी का बैलेंस का हमें क्या करना होगा? ये तो प्रोविज़न थी कि हमें ऐसे लग रहा था कि ये पर्टिकुलर पर्सन या कोई भी डेटर्स है उसमें से हमें क्या 3,000 अमाउंट नहीं मिलने वाली, ये हमने प्रोविज़न की थी. बट अभी ये ऐसे हो रहा है क्या? नहीं, नो लॉन्गर टू मेंटेन आरडीडी. तो वो 3,000 हमारे बच गए. तो बच गए मतलब हमारा क्या हो गया? गेन हो गया. दैट्स वाई उसकी पोस्टिंग होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. उसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. तो अभी बच्चे सोचते होंगे फिर बैलेंस शीट न्यू बैलेंस शीट में क्या करना है वहाँ पे? तो न्यू बैलेंस शीट में सिर्फ इनर कॉलम में डेटर्स की जो भी अमाउंट है वही लिखनी है.
वहाँ पे कोई भी ऐड या लेस अमाउंट नहीं लिखने वाले। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? इनर कॉलम में जो भी अमाउंट है वही लिखेंगे न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। सन्ड्री डेटर्स ₹30,000 नॉट 27,000। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड ₹4,500 इन इज टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स। मतलब जो भी रेंट रिसीव्ड था वो पहले से अनरिकॉर्डेड था, तो रिकॉर्ड करना होगा फिर ये। नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट्स वाई वी एडजस्टेड राइट नाउ व्हेन वी एडमिटेड सुवर्णा। सो अभी एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब क्या है, क्या एडजस्ट कर रहे हैं? अनरिकॉर्डेड एसेट्स। व्हाट वी एडजस्ट हियर? अनरिकॉर्डेड एसेट्स। एवरीबडी अंडरस्टूड ना? रेंट रिसीवेबल इज अवर आउटस्टैंडिंग इनकम। Understood na? Because already we learned that one concept in our second chapter, not for profit concern. Okay, if any expenses, sorry, if any income is due, then this is our asset. This is our asset, same as it is here. We received rent, but up to that date we not received, so means what is a receivable? तो receivable income is our asset. So first effect we recorded new balance sheet asset side rent receivable ₹4,500, and second effect revaluation account credit side, because पहले से हमारे वो बैलेंस लायबिलिटी एसेट का बैलेंस था नहीं था, ज़ीरो था, अभी बढ़ गया। दैट्स वाई व्हेन एसेट्स वैल्यू इंक्रीजेस देन वी रिकॉर्डेड रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। सो सेकेंड इफेक्ट वेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। अगेन आई एक्सप्लेन, अगर रेंट रिसीव्ड ₹4,500 आपको एडजस्टमेंट में दिया है, अब भी एडजस्ट किया आफ्टर एडमिटिंग सुवर्णा, इसका मतलब क्या है? रिकॉर्ड ही नहीं किया, अनरिकॉर्डेड है। और यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है? रेंट रिसीवेबल दिखा रहा है। रिसीवेबल मतलब क्या? अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ है, रिसीव्ड होने वाला है बट अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग इनकम है। अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो वो हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स होता है। तो उसका फर्स्ट इफेक्ट होगा न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड रेंट रिसीवेबल, एंड सेकेंड इफेक्ट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड क्यों? पहले से वो रेंट रिसीवेबल का बैलेंस ज़ीरो दिखा रहा था, अनरिकॉर्डेड था ना, दैट्स वाई। अभी तो हम दिखा रहे हैं, मतलब दैट बैलेंस इज व्हाट? इंक्रीजेस, सो वी रिकॉर्डेड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। अंडरस्टूड? ओके, the last adjustment they given capital account of partners to be adjusted in new profit sharing ratio by opening current account। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है, मतलब जो भी डिफरेंस दिखाएगा या दिखेगा आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, तो वो डिफरेंस हमें दिखाना है एज अ करंट अकाउंट। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यहाँ पे क्या करना है? हमें कैपिटल कैलकुलेट करना है। कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी डिफरेंस दिखेगा वो डिफरेंस, हमें उस डिफरेंस को नाम क्या देना है? करंट अकाउंट। क्या नाम देना है? करंट अकाउंट। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो देखते हैं प्रॉब्लम। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में आपको सिर्फ बताया गया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट, बट you have to compulsory solve journal entries in the books of firm, journal entries in the books of new firm। आपको कंपलसरी आपके नोटबुक में ये नोट डाउन करके लेना है इसकी जर्नल एंट्री भी। क्यों जर्नल एंट्री भी? क्योंकि एग्जाम में आइदर जर्नल एंट्री या लेजर पूछे जाते हैं, दैट्स वाई आपको इसकी पर्टिकुलर जर्नल एंट्री क्या है वो भी पता होनी चाहिए। साइमल्टेनियसली आई विल एक्सप्लेन उसकी जर्नल एंट्री क्या है, पोस्टिंग क्या है, जर्नल एंट्री क्या है, पोस्टिंग क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट अकाउंट वी प्रिपेयर हियर प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, अनदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहा जाता है।
उसके डेबिट साइड में एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो पोस्टिंग करते हैं। उसके क्रेडिट साइड में एसेट की वैल्यू इंक्रीज और लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो पोस्टिंग करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्या लिखा है। फर्स्ट क्या लिखा है, एक्चुअली डेबिट साइड में कुछ भी बैलेंस ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई एसेट की वैल्यू डिक्रीज ही नहीं हुई है। ठीक है, वहाँ पे कोई भी एसेट्स वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में या लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज नहीं लिखी है। कोई ऐसे एडजस्टमेंट सबसे ईजीएस्ट प्रॉब्लम था, बस जस्ट ओनली डिफिकल्टी कहाँ पे थी, आरडी, गुडविल एंड कैपिटल कैलकुलेशन। बाकी सारे कोई भी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट नहीं थे उसमें। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली बताया था आरडीडी के बारे में। आरडीडी हमारे रिजर्व हो गए, मतलब हमारे लिए गेन हो गए। दैट्स वाई वी रिकॉर्ड ए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय आरडीडी ₹3000 दिखा आपको यहाँ पे। एंड रेंट रिसीवेबल अनरिकॉर्डेड था, मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट थी, दैट्स वाई उसका इफेक्ट हो गया यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रेंट रिसीवेबल ₹4500। ओके, और उसका बैलेंस शीट भी दिखाती हूँ। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड 4500। डेटर्स देखो एज इट इज़ लिखे हैं, जो भी इनर में अमाउंट थी वही लिखी है, बिकॉज जो भी आरडीडी थे वो हमारे रिजर्व हो गए तो लेस करने की ज़रूरत नहीं हो, ऐड नहीं करेंगे। हाँ, लेस तो नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज में हमने वो प्रोविजन की, तो प्रोविजन इज अवर एक्सपेंसेस मेंटेन करने के लिए प्रोविजन करते, राइट। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो एनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सी, so after we tally profit or loss adjustment account, see what we see here. We got profit ₹7,500. How many? 7,500. That can be always distributed to all partners in their old ratio. अभी थर्ड पार्टनर्स को क्यों नहीं देना है, सुवर्णा को क्यों नहीं देना? बिकॉज सुवर्णा इज एडमिटेड राइट नाउ। ये जो भी उनका प्रॉफिट हो रहा है ये कब है, जब उन्होंने पहले मेहनत की थी तब का प्रॉफिट हो रहा है ना। और सुवर्णा अभी एडमिट हो रही है, आज एडमिट हो रही है, आज ही उसको प्रॉफिट देने जाएंगे क्या? नहीं। तो ये सब किसकी मेहनत है? तो उनकी मेहनत है, दैट्स वाई उन्हीं को ही देंगे वो प्रॉफिट। ओके, तो दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 4:1 फॉर कबीर 6,000 एंड फॉर रेशमा 1,500 एंड दैट प्रॉफिट ट्रांसफर टू partners capital account credit side, where this transfer, this one profit transferred to partners capital account credit side दिखा, partners capital account credit side by P and L account adjustment account 6,000 and 1,500 प्रॉफिट लिखा है वहाँ पे। यहाँ पे आपको दिखेगा ये बैलेंसेस तो आपको पता है, इज ओपनिंग बैलेंसेस जो आपको दिए थे ओल्ड बैलेंस शीट में, वो लिखा हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आफ्टर दैट जनरल रिजर्व वी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो 24,000 and 6,000. प्रॉफिट और लॉस बैलेंस ऑल्सो वी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो 4,800 and 1,200. देन नेक्स्ट ये जो बैंक दिख रहा है वो बैंक का बैलेंस मतलब क्या है, ये बैलेंस था सुवर्णा ने कैपिटल लाया था वो वाला। when सुवर्णा bought capital then we recorded partners capital account credit side by bank ₹45,000 under column सुवर्णा। ओके, देन सुवर्णा ने जो भी गुडविल लाया था वो गुडविल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, कैसे कैलकुलेट किया सुवर्णा का गुडविल? हमने जो ओल्ड बैलेंस शीट में बैलेंस दिया था उसमें से वो लेस किया है न्यू बैलेंस से, जो एडजस्टमेंट में बैलेंस दिया था उसमें से। तो 75,000 माइनस 66,000, सो वी गॉट आंसर 9,000 एंड 9,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये गुडविल की एंट्री मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। ये तो P&L अकाउंट के बारे में मैंने अभी बताया है। ये क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ था ये है। देन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, बैलेंस कैरी डाउन पहले दे रहा है।
वो कैसे आया है? तो वो बैलेंस कैरिड डाउन मतलब हमारी एडजस्टमेंट नंबर 5th, एडजस्टमेंट नंबर 5th। तो उसकी वर्किंग नोट देखते हैं। अगर हमें एडजस्टेड कैपिटल या न्यू कैपिटल कैलकुलेट करना है फॉर ऑल पार्टनर्स, इफ we are required to calculate new capital of all partner, we require here to calculate first new ratio. What we require here? Calculate new ratio, because in our adjustment there is no any new ratio is given. दिया है क्या? नहीं दिया है। That's why यहाँ पे हम new ratio पहले कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए क्या लगता है हमें? न्यू पार्टनर्स का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हियर दे गिवन 20% शेयर्स इन ए फ्यूचर प्रॉफिट। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट? 20% निकालना है हमें 100 का। 100 का 20% क्या आ रहा है आंसर? 1/5 आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर? 1/5। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/5 लिखेंगे। तो 1/5 क्यों लगता है हमें? बैलेंस रेशो निकालना या बैलेंस ऑफ 1 निकालने के लिए। तो बैलेंस ऑफ 1 क्या आएगा आपका? 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशो। न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशो हमने रिसेंटली कैलकुलेट किया, क्या है आंसर? 1/5 आया है। तो 1 माइनस 1/5 कितना हो गया? 5 1 जा 5, 5 माइनस 1 4/5। तो हमारा बैलेंस ऑफ रेशो या बैलेंस ऑफ 1 वी गॉट 4/5। तो कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट कबीर का रेशो। कबीर का न्यू रेशो फॉर्मूला इज व्हाट? ओल्ड रेशो मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस रेशो। बैलेंस रेशो मैंने अभी आपको बताया है, तो लिखते ओल्ड रेशो इसका क्या था? 4 नंबर ऑफ शेयर्स थे, टोटल 5 नंबर ऑफ शेयर में से 4 नंबर ऑफ शेयर्स किसके थे? कबीर के। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। अभी ये 4/5 अगेन कहाँ से आया? तो ये क्या है? बैलेंस रेशो। कैसे कैलकुलेट किया मैंने? 1 माइनस 1/5। तो आंसर आएगा 4/5। अंडरस्टूड? आफ्टर दैट वी गॉट 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 इज अ कबीर्स न्यू रेशो। अभी उसे शॉर्टेज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं रेशमा का रेशो। रेशमा का रेशो क्या था? 4:1 था। तो 1 शेयर किसके थे? रेशमा के। टोटल नंबर ऑफ 5 शेयर में से 1 शेयर किसके थे? रेशमा के। तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। 4 1 जा 4, 5 5 जा 25। So we got answer 4/25 is in Reshma's new ratio. Suvarna's everybody know ratio is what? 1/5 था, बट सबका डिनोमीटर क्या? 25 है। तो इसका भी डिनोमीटर 25 होना चाहिए। तो उसका डिनोमीटर 25 होने के लिए हमें उसे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। अगर डिनोमिनेटर 5 क्या है? 5 है, तो न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए? एज पर मैथमेटिकल रूल्स 5 ही होना चाहिए। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो वी गॉट न्यू रेशो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज व्हाट? 16:4:5. What is the answer? 16:4:5 is a new ratio of all partners. याद रखो, ये जरूरी है अभी हमें। देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। When Suvarna is admitted, she bought capital for rupees 45,000 for 1/5 share, means 20% of 100. Okay, जब वो एडमिट हुई थी तो उसने 45,000 क्या लाया था? कैपिटल लाया था फॉर 1/5 शेयर। मतलब जब 5 नंबर ऑफ शेयर थे तो उसमें से 1 शेयर के लिए उसने 45,000 शेयर लाए हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर 5 थे, उसमें से 1 नंबर ऑफ शेयर के लिए उसने 45,000 लाए हैं। तो 5 शेयर के लिए कितनी अमाउंट होगी? तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आ रहा है 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज अवर टोटल कैपिटल अमाउंट। तो आंसर है 2,25,000 total capital amount of all partners including new partners. Here we got total capital amount rupees 2,25,000. So that can be distributed in a new ratio to partners. Okay, so first one we distributed to Kabir 2,25,000 multiplied by 16/25। 16/25 मैंने कहाँ से लिया?
is our new ratio of Kabir. So we got answer 1,44,000 is Kabir's capital. Is what? Kabir's capital. Same as it is calculated for Reshma, 2,25,000 multiplied by 4 upon 25. Then Reshma's capital amount 36,000. What? 36,000. And Suvarna's everybody knows what? 45,000. So new capital of adjusted capital of all partners is what? Kabir's 44,000, Reshma's 36,000 and Suvarna's 45,000. तो ये 5th नंबर एडजस्टमेंट है, उसकी 2 जगह पोस्टिंग होती है. फर्स्ट पोस्टिंग होगी वी रिकॉर्डेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस कैरिड डाउन. हाँ, यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन. ये डिफरेंस नहीं है, ये हमने कैपिटल कैलकुलेट किया है. डिफरेंस हमें यहाँ पे दिखाना है एज अ करंट अकाउंट. क्या दिखाना है? एज अ करंट अकाउंट. तो यहाँ पे ये डिफरेंस नहीं है. तो यहाँ पे हमने लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन. ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट. अंडरस्टूड एवरीबडी? सेकेंड इफेक्ट वी रिकॉर्डेड न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड Kabir's capital 1,44,000, Reshma's 36,000 and Suvarna 45,000. दिखा सेकेंड इफेक्ट. 5th नंबर एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट वी रिकॉर्डेड न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. अंडरस्टूड? कंफर्म? ओके. सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए. यहाँ पे कुछ भी नहीं है. यहाँ पे गुडविल लिखना है. आज तक हमने गुडविल की अमाउंट नहीं लिखी थी, बट यहाँ पे गुडविल क्या हो रहा है? रिवैल्यूड हो रहा है. दैट्स व्हाई वी रिकॉर्डेड दैट गुडविल अमाउंट 75,000 इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके, अंडरस्टूड? ठीक. Then after that we tally our partners capital account. After tally partners capital account, Suvarna's balance 45,000, debit balance same as it is as well as credit balance. So there is no any difference for Suvarna's capital. कोई भी difference नहीं है. Then we tallied Reshma's account. Reshma's account balance is what? 85,000 and here balance is what? 36,000. तो 85,500 में से 36,000 माइनस करते हैं. देन वी गॉट डिफरेंस 49,500. सेम हम टैली करते हैं कबीर का बैलेंस टैली करने के बाद हमें दिख रहा है क्रेडिट साइड ज़्यादा है 1,47,000. उसमें से 1,44,000 माइनस करने के बाद हमें डिफरेंस दिख रहा है 3,000. ये जो भी डिफरेंस दिखेगा उसे हमें नाम देना है टू करंट अकाउंट. जो लास्ट वन एडजस्टमेंट है उसी का मतलब यही है जो वहाँ पे अभी जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करने जाते तो वहाँ पे जो भी डिफरेंस दिखेगा दैट डिफरेंस को आपको दिखाना है एज अ करंट अकाउंट. अभी ये करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा? कैपिटल तो हो गया, मैंने दिखा है. तो करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा? सेम न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कबीर्स करंट अकाउंट एंड रेशमास करंट अकाउंट. दिखा? बाद में एज पर आवर वर्किंग नोट बैंक अकाउंट भी टैली कर लो. बैंक अकाउंट में आपने क्या क्या बैलेंस दिखाया होगा? एक तो बैंक का बैलेंस क्या था? बैंक का बैलेंस 83,000 था. उसमें ऐड करने हैं 9,000 प्लस 45,000. कितने हो गए? ओके, तो ये हो गया हमारा बैलेंस बैंक का. दिखा? ये डेटर्स 30,000 एडिटिव लिखे. ये हमारी सेकेंड एडजस्टमेंट. गुडविल लिखा हमने यहाँ पे. बिल्डिंग के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी. 4th वन एडजस्टमेंट का इफेक्ट यहाँ पे लिखा है. क्रेडिटर्स लिखे दोनों भी. यस, दैट्स इट. ये हो गया हमारा टैली. तो इस प्रॉब्लम में एग्जैक्टली हमें क्या क्या पढ़ा वो ठीक से एक बार वीडियो एक बार फिर से रिव्यू करो. आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार रिव्यू करो और देखो वहाँ पे एग्जैक्टली क्या बताया है. फिर भी अब फिर से लास्ट में अगेन रिवाइज कर लेती हूँ. यहाँ पे हमने एग्जैक्टली क्या क्या दिखा है. वहाँ पे 20% शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट बताया था. आज तक हमें ऐसे 20% ऐसे कहीं पर भी शेयरिंग रेशो नहीं दिया था. तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है? 100 शेयर के लिए 20%. सो आंसर आ रहा है वहाँ पे 1/5. तो न्यू फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग के यहाँ पे क्या आ रहा है? 1/5 आया था.
सेकेंड एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पे गुडविल की अमाउंट रीवैल्यूड होगी, डायरेक्टली वैल्यू दिया है उन्होंने, तो 75,000 राइट नाउ गुडविल अमाउंट इज व्हाट 75,000। तो कंपेयर करो ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी गुडविल की अमाउंट दी है, जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस सुवर्णा के नाम से आएगा और वो डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर रेशियो। ओके, ये पढ़ा हमने इसमें। देन आरडीडी के बारे में भी पढ़ा हमने। आरडीडी के बारे में वहाँ पे आरडीडी मेंटेन ही नहीं करना है हमें, यहाँ पे एडजस्टमेंट में बताया आरडीडी है ही नहीं है। तो पहले से हमने जो भी प्रोविज़न की थी उसका क्या होगा, तो जो भी हमने पहले से प्रोविज़न की तो हमारे लिए वो गेन हो गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो कि मैं अभी मार्केट में जा रही हूँ, तो मैं 500 रुपीज़ लेके जा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे 500 रुपीज़ लगेंगे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मुझे मेरे फ्रेंड ने ही नाश्ता खिलाया, तो मेरे पैसे खर्चे हो गए क्या वहाँ पे। मैं फिर से घर पे आती तो मेरे पास 500 एज इट इज़ है। मैं सोच के गई थी जब मैं जाऊँगी मार्केट या कुछ खाना तो मेरे इतने इतने पैसे खर्चे होने वाले, बट यहाँ पे अभी मेरे फ्रेंड ने ही पैसे दे दिया, सो देयर इज़ नो एनी एक्सपेंसेस, नहीं हो गए, तो मेरे 500 बच गए, वो जो भी रिजर्व अमाउंट थी मेरी बच गई, वैसे ही यहाँ पे आरडीडी भी हमारा बच गया। ओके, तो दैट्स वाई उसका इफेक्ट हमने कहाँ पे किया, बच गया, दैट्स वाई रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। देन रेंट रिसीवेबल मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट थे, तो अनरिकॉर्डेड एसेट लिखा जाता है ऑलवेज विल बी बैलेंस शीट एसेट साइड, एंड सेकेंड इफेक्ट होता है उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। रिवैल्यूएशन का अनदर नेम है प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, हाँ, आपको आज के लिए होमवर्क है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, ज़्यादा एंट्री नहीं है। कौन सी जनरल एंट्री होगी, फर्स्ट जनरल एंट्री जनरल रिजर्व, सेकेंड जनरल एंट्री प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ओल्ड बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस दिए ना जनरल रिजर्व प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, उसकी जनरल एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, सुवर्णा ने कैपिटल लाया है। नेक्स्ट एंट्री होगी सुवर्णा ने कैपिटल गुडविल लाया है और डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसकी एंट्री होगी। बाद में आरडीडी की एंट्री होगी, रेंट रिसीवेबल की एंट्री होगी, है अंडरस्टूड। ओके, एंड लास्ट वन एंट्री इज रिमेनिंग, क्या है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया उसकी जनरल एंट्री करेंगे, दैट्स इट।